ایک شریف نوجوان جسے قدم قدم پر سنگسار کیا گیا۔ ظالم معاشرے کی ناانصافیوں، کرپٹ پولیس اور دولت مند بدماشوں نے اسے بھی ایک غنڈہ بننے پر مجبور کر دیا۔ اور جب ایک شریف انسان جرائم پیشہ بن جائے تو وہ سب غنڈوں سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایک بدقسمت نوجوان جسے جرم کی دلدل نے ایک آتش فشاں بنا دیا۔ بدلے کی آگ میں جلتے ایک شریف نوجوان کی کہانی۔ حاجی نے فون کا ریسیور پٹخ دیا، پھر دروازے کی طرف مڑ کر چیخ چیخ کر شفقت کو پکارنے لگا۔ شفقت کے گھر والے جاگ رہے تھے لیکن شفقت سو گیا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا حاجی کے کمرے میں پہنچا۔ اس کی آواز میں نیند کا خمار تھا۔ کیا ہوا حاجی صاحب؟ حاجی غرایا سمینہ کا فون آیا تھا۔ شفقت اچھل پڑا۔ سمینہ کا؟ سمینہ کا نام سن کر اس کی نیند کافور ہو گئی تھی اور دماغ میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ حاجی دھاڑا، ہاں سمینہ کا۔ اس نے دھمکی دی ہے کہ وہ لوگ جب چاہیں مجھے بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میں اس وقت یہاں چھپا ہوا ہوں۔ یہاں فون کرنے کا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ جانتی ہے۔ یہ معلوم کرو کہ یہاں میری موجودگی کے بارے میں کس کس کو علم تھا۔ ان میں سے جس پر غداری کا شبہ ہو اسے گولی سے اڑا دو۔ جاؤ، یہاں کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ شفقت کچھ کہے بغیر حاجی کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی بیوی بھی فوراً ہی اس کے پیچھے پہنچ گئی۔ اس کی بیوی عائشہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ کیوں چیخ رہا ہے؟ عائشہ ایک سیدھی سادی عورت تھی۔ اسے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس کا شوہر کن کاموں میں پھنسا ہوا ہے۔ حاجی کے بارے میں بھی وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس نے حاجی کا صرف نام سنا تھا اور یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے گھر میں جو شخص مہمان بن کر رہ رہا ہے یہ وہی حاجی ہے جس کے خلاف پورے شہر میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ 4-5 روز پہلے جب حاجی یہاں آیا تھا تو شفقت نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کا ایک زمیندار دوست ہے جو ایک مقدمے کی پیشی کے سلسلے میں شہر آیا ہوا ہے اور گھر سے باہر اس لیے نہیں نکلتا کہ اسے اپنے مخالفین سے جان کا خطرہ ہے۔ ان کا مکان 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ حاجی جس کمرے میں رہائش پذیر تھا وہ بالکل الگ تھلگ تھا۔ شفقت کی بیوی نے اس طرف کبھی جھانکا تک نہیں تھا۔ اسے کبھی حاجی کی آواز بھی سنائی نہیں دی تھی، لیکن آج تو وہ رات 2 بجے سے بار بار چیخ پکار کر رہا تھا۔ شفقت نے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کوئی خاص بات نہیں ہے، اس کا مقدمہ کچھ کمزور پڑتا جا رہا ہے اس لیے آج رات سو نہیں سکا۔ رات 2 بجے اس کے وکیل نے اطلاع دی تھی کہ اس کے اپنے آدمی ٹوٹ کر اس کے مخالفین سے جا ملے ہیں اور ابھی کچھ دیر پہلے پھر وکیل کا فون آیا تھا کہ اس کا کوئی اہم ترین گواہ اس کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہو گیا ہے، اس لیے وہ چیخ رہا تھا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ نے کہا، پریشان کیوں نہ ہوں؟ گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، میں بھی گاؤں کی رہنے والی ہوں، زمینداروں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ ان کی آپس کی مقدمے بازیوں میں گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، انہیں تو کچھ نہیں ہوتا، مارے جاتے ہیں ان کے مزارے اور یار دوست۔ دیکھو شفقت، وہ اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی، تمہارے دوست یہاں آتے رہتے ہیں، نہ میں کبھی کسی کے سامنے ہوں گی اور نہ میں نے کبھی کسی کے آنے پر کوئی اعتراض کیا ہے، لیکن جب سے تمہارا زمیندار دوست آیا ہے میں پریشان سی رہنے لگی ہوں۔ میرا تو مشورہ ہے کہ ایک آدھ دن میں اسے یہاں سے چلتا کرو، اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تو میرا خیال کرو، اپنی جوان بیٹیوں کا خیال کرو۔ شفقت نے کہا، بات یہ ہے عائشہ، جب ہم پر برا وقت آیا تھا اور ہم ایک وقت کی روٹی تک کو محتاج ہو گئے تھے تو میرا یہی دوست کام آیا تھا۔ تم جانتی ہو ہم کھولی نما مکان میں رہتے تھے اور اس کھولی کا کرایہ دینے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے اس زمیندار دوست کی وجہ سے ہوں۔ ویسے تم ٹھیک کہتی ہو، گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، میں ان لوگوں کے جھگڑوں میں نہیں پھنسنا چاہتا، لیکن اسے کھرا سا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ ویسے میں کوشش کروں گا کہ کسی بہانے سے آج ہی اسے یہاں سے چلتا کر دوں۔ عائشہ بولی، ہم سب کا فائدہ اسی میں ہے، محلے والوں کو بھی اب باتیں بنانے کا موقع مل رہا ہے۔ ہماری پڑوسن فاطمہ کل مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیسا مہمان ہے جو 24 گھنٹے گھر میں گھسا رہتا ہے اور باہر نہیں نکلتا۔ شفقت نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں آج ہی اسے رخصت کر دوں گا۔ پھر وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگا۔ عائشہ نے پوچھا، کہیں جا رہے ہو؟ شفقت بولا، ہاں ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، دوپہر تک واپس آؤں گا، تم لڑکے کے ہاتھ حاجی صاحب کو ناشتہ بھجوا دینا۔ عائشہ بولی، تم بھی ناشتہ کر کے جانا، میں بانو سے کہتی ہوں پہلے تمہیں ناشتہ بنا دے۔ شفقت اپنی جگہ پر کھڑا سوچتا رہا۔ وہ بیوی کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ عائشہ ٹھیک ہی کہتی تھی، اس کی 3 جوان بیٹیاں ہیں، 2 کالج میں اور 1 اسکول میں پڑھتی ہے۔ اس محلے میں بڑی شرافت سے زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے بارے میں لوگ صرف اتنا جانتے تھے کہ وہ بزنس مین ہے اور سب اس کی عزت کرتے تھے، اور شفقت نے یہ عقل مندی کی تھی کہ اپنے اس کالے دھندے کو اس نے گھر سے دور ہی رکھا تھا۔ اس نے بیوی کو بھی کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے اور نہ ہی بیوی نے کبھی اس سے کچھ پوچھا تھا، اور آج زندگی میں پہلی مرتبہ اسے صورتحال کی نزاکت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے حاجی عبداللہ کے لیے بڑے بڑے کام کیے تھے، شارق سے بھی اس کے تعلقات رہے تھے،
और शारिक के अफगानिस्तान जाने के बाद हाजी ने जब उसकी माँ और बहन से कोठी छीनने का फैसला किया था तो शफकत ने हाजी को इस काम से रोकना चाहा था, लेकिन हाजी ने बात नहीं मानी और शारिक की माँ और बहन को धक्के देकर घर से निकलवा दिया। अफगानिस्तान से वापस आने के बाद जब शारिक को सूरत हाल का इल्म हुआ तो उसने हाजी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू की। शारिक के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई करना तो क्या, हाजी अभी तक ये पता नहीं चला सका था कि शारिक और समीना हैं कहाँ। हाजी बार बार ठिकाने बदल रहा था, लेकिन वो हमा वक्त शारिक की निगाहों में था। शारिक को अब ये भी मालूम हो गया था कि हाजी उसके घर में छुपा हुआ था। शफकत दरअसल हक के नमक अदा कर रहा था, लेकिन आज बीवी की बातों ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब हाजी हारा हुआ घोड़ा है और शफकत के ख्याल में हारे हुए घोड़े पर शर्त लगाना अक्लमंदी नहीं। उसने चश्मे तसव्वुर से आने वाले कल की तस्वीर भी देख ली थी। महमूद को हाजी ने असेंबली तक पहुंचाया था। वो हाजी के पैर चाटा करता था, लेकिन आज उसने भी हाजी की कोई मदद करने से इनकार कर दिया। शारिक और समीना की कार्रवाइयां तेज हो रही थीं। दूसरी तरफ अवामी दबाव से हुकूमत भी हाजी के खिलाफ कार्रवाई का प्रोग्राम बना रही थी। इन हालात में अक्लमंदी का तकाजा तो यही था कि हाजी से अलहदगी इख्तियार कर ली जाए, लेकिन वो हाजी से इस तरह अलग होना चाहता था कि उसे शुबा ना हो सके कि वो उसका साथ छोड़ रहा है। बहुत सोच विचार के बाद उसके जहन में एक तरकीब आई और उसने उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। शफकत अपने ख्यालात से उस वक्त चौंका जब उसकी बड़ी बेटी बानो उसके लिए नाश्ता लेकर आ गई। वो नाश्ता कमरे में पड़ी हुई छोटी मेज पर रख रही थी और शफकत बड़ी गहरी नजरों से उसे देख रहा था। बानो ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब्बू नाश्ता। शफकत ने कहा, हाँ बेटा, और मेज के सामने कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगा। नाश्ता खत्म करने के बाद उसने कपड़े बदले और 8 बजे के करीब हाजी से मिले बगैर घर से निकल गया। शफकत ने आयशा से कहा था कि वो दोपहर तक वापस आ जाएगा, लेकिन उसकी वापसी शाम 6 बजे के करीब हुई। वो सिर्फ चंद मिनट के लिए घर में आया था और फिर उस हिस्से में चला गया जहां हाजी रिहाइश पजीर था। वो दोनों देर तक बातें करते रहे। इस दौरान दोनों ने कई मर्तबा कई जगहों पर फोन किए थे। रात 9 बजे के करीब पजेरो दरवाजे पर आकर रुकी। कॉल बेल बजने पर दरवाजा शफकत ने ही खोला था। उस वक्त गली में कुछ लोगों की आमदोरफ्त हो रही थी। शफकत पजेरो से उतरने वाले 2 आदमियों से इस तरह गर्मजोशी से मिला जैसे वो उसके बहुत गहरे दोस्त हों और ये मुलाकात बहुत अरसे के बाद हुई हो। वो उन्हें अंदर ले गया। वो दोनों तकरीबन 10 मिनट तक हाजी से बातें करते रहे और जब वो वापस जाने लगे तो हाजी अब्दुल्ला भी उनके साथ था। पजेरो चली गई। शफकत दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने इत्मीनान का गहरा सांस लिया और अंदर आ गया। वो अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, जैसे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मुबारक हो भाई, हाजी अब्दुल्ला वसंतपुरे वाले ठिकाने से भी भाग गया। ये बात इंस्पेक्टर उस्मान ने कही थी जो अभी अभी अंदर दाखिल हुआ था। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे और वो सब लोग लाउंज में बैठे टीवी पर आने वाला ड्रामा देख रहे थे। समीना ने जल्दी से उठकर टीवी बंद कर दिया और उस्मान के सामने बैठ गई। बोली, तफसील से बताओ, वो किस वक्त वहां से गया है और कहां गया है? उस्मान ने कहा, वो रात 9 बजे के लगभग वहां से गया है। मैं 10 बजे के करीब मिस्री शाम में पहलवान की दुकान से पान बनवा रहा था। मेरा इरादा इसी तरफ आने का था और तुम लोगों के लिए पान बनवा रहा था कि शफकत भी वहां गया। उसके साथ गाड़ी में उसकी बीवी और बेटियां भी थीं। वो शायद उन्हें सैर कराने के लिए निकला था और पान लेने के लिए रुक गया था। मुझे देखकर वो गाड़ी से उतरा। वो आज मुझे कुछ बदला बदला सा लगा। उसकी बातों से अंदाजा हुआ कि वो हाजी अब्दुल्ला से कुछ बदगुमान हो रहा है। मैंने उससे ये दरियाफ्त किया था कि वो तो हाजी का बहुत करीबी साथी है। उससे मुलाकात हो तो उससे मेरी सिफारिश कर दे कि अब तो मुझे माफ कर दे। उसके एक टेलीफोन पर मेरी मुलाजमत बहाल हो सकती है। और तुम लोग जानते हो उसने क्या जवाब दिया? समीना मुस्कुराई। उसने जवाब तुम्हें दिया था, हम कैसे जान सकते हैं? उस्मान बोला, उसने कहा कि हाजी 9 बजे तक उसके घर पर रहा था, लेकिन मैंने उसे चलता कर दिया और अभी उसे भी नहीं पता कि वो कहाँ गया है। उसके बाद वो अजीब सी बातें करने लगा। उसने अपनी जवान बेटियों का भी जिक्र किया। उसकी बातों से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो हाजी से बदगुमान हो रहा है और उससे अलग होना चाहता है। समीना ने उसके खामोश होने पर कहा, गुड, लोग चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। हाजी अब्दुल्ला का जवाल शुरू हो चुका है। शफकत पहला आदमी है जिसके बारे में तुमने ये अंदाजा लगाया है कि वो हाजी को छोड़ रहा है, और मुझे यकीन है कि चंद रोज के अंदर अंदर उसके सारे आदमी भाग जाएंगे। लेकिन हाजी को हम चैन से नहीं बैठने देंगे। उसके जो अड्डे हमारी नजरों में आ चुके हैं उन्हें तो हर हाल में तबाह करना है। वो कुछ देर खामोश हुई, फिर बोली, अब तुम्हें 2 काम करने हैं। पहले नंबर पर यह मालूम करना है कि हाजी का नया ठिकाना कौन सा है, और दूसरे नंबर पर बंद रोड वाले ठिकाने के बारे में पूरी मालूमात हासिल करनी है। ये काम ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। इंस्पेक्टर उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा, हो जाएगा। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, एक बात और बताना चाहता हूँ जो सबसे अहम है। समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोली, वो क्या? उस्मान मुस्कुराते हुए बोला, मुझे बड़े जोर की भूख लग रही है। शारिक बोला, क्यों?
आज बीवी ने खाना नहीं दिया क्या? उस्मान बोला, मैंने उसे चंद रोज के लिए गांव भेज दिया है। आज दिन में हाजी के 2-3 आदमियों से भी मुलाकात हुई थी। उनकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया है कि हाजी को अपने बाज आदमियों पर शुबा हो गया है कि वो शारिक के लिए मुखबरी कर रहे हैं। हो सकता है मेरा नाम भी उन मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में हो, इसलिए मैंने आज ही बीवी बच्चों को गांव भेज दिया है। हाजी जैसे आदमी का कोई भरोसा नहीं, मुझ पर शुबा होने की सूरत में वो मेरे बीवी बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। समीना ने कहा, अच्छा किया तुमने। फिर वो शापरी से बोली, तुम सालन गर्म करो, मैं आकर 2 रोटियां पकाती हूँ। तकरीबन आधे घंटे के बाद इंस्पेक्टर उस्मान खाना खा रहा था। उसके साथ ही आज की सूरत हाल पर तबसरे हो रहे थे। उस्मान उन्हें बता रहा था, आज भी अखबारात ने ज़मीं में शाया किए हैं। बाज आला और जिम्मेदार अफसरों के ऐसे बयानात भी शाया हुए हैं जिनसे अंदाजा होता है कि हुकूमत अब हाजी अब्दुल्ला के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इरादा रखती है। समीना बोली, हुकूमत जरूर कार्रवाई करेगी, लेकिन उससे पहले हम अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लें। शारिक बोला, और उसे इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि वो कोई मज़ाहमत कर सके। उस्मान ने कहा, मज़ाहमत करने के काबिल तो वो अब भी नहीं रहा, वो तो छुपने के ठिकाने तलाश करता फिर रहा है। शारिक बोला, नहीं, उसे कमजोर मत समझो, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो, और हाजी अब्दुल्ला जैसा मक्कार दुश्मन, उसमें अभी बड़ा दम है। उसके आदमी असेंबलियों में बैठे हुए हैं, पुलिस और सरकारी महकमों में उसके नमकखार मौजूद हैं। अगर किसी शरीफ और दयानतदार ऑफिसर ने उसके खिलाफ किसी कार्रवाई की बात की है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उसके खिलाफ वाकई कार्रवाई शुरू हो जाएगी और उसे पकड़कर सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, उसमें अभी बड़ा दम है, वो आसानी से हथियार नहीं डालेगा, वो जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ेगा। उस्मान के मुंह से गहरा सांस निकला, बोला, शायद तुम ठीक कहते हो। उस्मान खाना खा चुका था। शापरी बर्तन उठाकर ले गई और कुछ देर के बाद चाय बनाकर ले आई। नौलखे ने अचानक कहा, तुम लोगों ने कुछ महसूस नहीं किया? बाहर बारिश हो रही है, मिट्टी की भीनी भीनी महक आ रही है। उसने उठकर खिड़की खोली, उसके साथ ही ठंडी और भीगी हवा का झोंका अंदर आया। समीना बोली, बादल तो सुबह से बन रहे थे, आखिर बूंदाबांदी शुरू हो ही गई। हल्की बूंदाबांदी से मौसम खासा खुशगवार हो गया था। वो लोग कमरे से निकलकर बरामदे में आ गए। बारिश तेज नहीं हुई, फुहार सी पड़ती रही और तकरीबन 1 घंटे बाद खत्म हो गई। वो लोग काफी देर तक बरामदे में बैठे रहे, फिर उठकर अपने कमरे में आ गए। नौलखा अंगड़ाई लेते हुए बोला, मेरा ख्याल है अब सो जाना चाहिए। वो लोग भी अपने अपने कमरों में चले गए। इंस्पेक्टर उस्मान ऊपर वाली मंजिल पर अपने कमरे में चला गया। वो बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बिलाखिर वो बिस्तर से उठकर बाहर आ गया। ऊपर की मंजिल पर भी एक कुशादा टेरेस बना हुआ था जिसमें चंद कुर्सियां भी पड़ी हुई थी। वो एक इजी चेयर पर नीम दराज हो गया और बादलों से ढके हुए तारीक आसमान को घूरते हुए शाहपरी के बारे में सोचने लगा। आज उसके यहाँ आने की असल वजह शाहपरी ही थी। यूं तो उससे समीना भी अच्छी लगती थी, लेकिन समीना की तरफ कदम बढ़ाने का मतलब वो अच्छी तरह समझता था। उसके ख्याल में वो शाहपरी को हासिल करके ही रहेगा, खा इसके लिए उसे कैसे ही कठिन और नाजुक मरहलों से क्यों ना गुजरना पड़े। उसने ये भी फैसला किया था कि वो इन लोगों के करीब रहने की कोशिश करेगा ताकि शाहपरी से मिलने का मौका मिलता रहे। इंस्पेक्टर उस्मान सुबह 4 बजे तक टेरेस पर बैठा शाहपरी के बारे में सोचता रहा और जब उसकी पलकें नींद से बोझल होने लगी तो वो कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। सुबह 10 बजे उसे झंझोड़ कर जगाया गया। उसे जगाने वाली शाहपरी ही थी। उसके हाथ में चाय का कप था और होंठों पर मुस्कुराहट थी। शाहपरी ने कहा, मुझे मालूम है तुम बेड टी पीने के आदी हो, इसीलिए चाय बनाकर ले आई हूँ। उसने चाय का कप बेड साइड टेबल पर रख दिया। आंख खुलते ही शाहपरी को देखकर उस्मान की आंखों में चमक सी उभर आई। वो रात भर कुर्सी पर बैठा उसके बारे में सोचता रहा था और फिर सोते में भी उसके ख्वाब देखता रहा था और अब वो उसके सामने थी। वो पलक झपके बगैर उसकी तरफ देख रहा था और जब शाहपरी कप रख कर जाने लगी तो उस्मान ने गैर इरादी तौर पर उसका हाथ पकड़ लिया। शाहपरी को ज़हनी तौर पर एक झटका सा लगा। उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि उस्मान इस किस्म की कोई हरकत करेगा। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश न की। पहले उसने उस्मान के उस हाथ की तरफ देखा जिससे उसने कलाई पकड़ रखी थी। फिर शाहपरी की नजरें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठती हुई उसके चेहरे पर जम गईं। उसकी नजरों में बेपनाह सर्द महरी थी। उस्मान के दिमाग को झटका सा लगा और उसने शाहपरी का हाथ छोड़ दिया। सॉरी शाहपरी। उस्मान के लहजे में खिजालत थी। बोला, मेरे दिमाग पर शायद अब भी नींद का खुमार तारी है। शाहपरी भी सर्द महरी के लहजे में बोली, अपने दिमाग का इलाज करवाओ, चाय पीकर नीचे आ जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उस्मान के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो दरवाजे की तरफ जाती हुई शाहपरी को देखता रहा और जब वो कमरे से निकल गई तो कप उठाकर चाय की चुस्कियां लेने लगा। आधे घंटे बाद जब वो नीचे उतर रहा था तो उसके दिल में हल्का सा खौफ था। वो सोच रहा था कि अगर शाहपरी ने उसकी हरकत के बारे में समीना या शारिक को बता दिया होगा तो वो लोग न जाने उसके साथ क्या सुलूक करेंगे। वो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और रजिया और शाहपरी नाश्ता लगा रही थी। उस्मान के दिल में हल्का सा खौफ था। वो शारिक के सामने कुर्सी घसीट कर बैठ गया और बारी बारी उन सब की तरफ देखने लगा।
किसी के चेहरे पर गैर मामूली तासुरात नहीं थे। शाहपरी ने भी ऑमलेट की प्लेट उसके सामने रखते हुए मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उस्मान ने इत्मीनान का सांस लिया। शाहपरी ने उसकी शिकायत नहीं की थी। उसने शायद गलती समझकर इस हरकत को नजरअंदाज कर दिया था। नाश्ते के दौरान ये प्रोग्राम बना कि उस्मान और शाहपरी बंद रोड पर जाकर हाजी के उस अड्डे का तफसीली जायजा लेंगे और उसके बाद उस अड्डे पर रेड करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा। उस्मान ने कनखियों से शाहपरी की तरफ देखा। शाहपरी के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। वो दोनों 11 बजे के लगभग घर से निकल गए थे। शाहपरी ने समीना का बुर्का पहन लिया। उसने चेहरा निकाब में छुपा रखा था, अलबत्ता आंखें नजर आ रही थीं। कार तेजाब अहाते और सुल्तानपुरे से होती हुई रेलवे स्टेशन के पुल की सीढ़ियों के करीब जीटी रोड पर आ गई और फिर 2 मोरिया पुल से होती हुई सर्कुलर रोड पर दौड़ने लगी। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से कार की रफ्तार कम थी। वो शाही किले के करीब से गुजरे तो शाहपरी हैरत आमेज नजरों से किले की अजीम दीवार को देख रही थी। उस्मान ने शाहपरी की तरफ देखते हुए कहा, यह मुगलों के दौर का बना हुआ किला है। लाहौर शहर में बेशुमार तारीखी इमारतें हैं जो हमारा तारीखी विरसा हैं। ये तारीखी इमारतें देखने से ताल्लुक रखती हैं। वापसी पर वक्त हुआ तो मैं तुम्हें इस किले की सैर करवाऊंगा। फिर वो उसे किले के बारे में बताने लगा। मंटो पार्क वाले चौक से कार बुढ़ा रावी की तरफ मुड़ गई और फिर उन्हें रावी के पुल तक पहुंचने में ज्यादा देर न लगी। उस चौक पर मेले का सा समा था। एक तरफ शहर से बाहर जाने वाली बसें कतार में खड़ी थीं। उन अतराफ से जो लोग लारी अड्डे पर नहीं जा सकते थे वो यहीं से बसों में बैठते थे। दूसरी तरफ शहर में दाखिल होने वाली बसें मुसाफिरों को उतार रही थीं। उस्मान ने कार बाईं तरफ बंद रोड पर मोड़ ली। ये सड़क जमीन की सतह से 10-12 फुट ऊंची थी। उसके बाईं तरफ गुंजान आबादी थी और दाईं तरफ कुछ फासले पर दरियाए रावी बह रहा था। सड़क और दरिया के दरमियान वसी रकबे पर शीशम और इसी किस्म के दरख्तों का जंगल था, जिसमें जगह जगह लोगों की टोलियां नजर आ रही थीं। लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आते रहते थे। उस्मान शाहपरी को बता रहा था, कुछ अरसा पहले दरिया में सैलाब आ जाने की वजह से शहर का बेशतर हिस्सा पानी में डूब जाया करता था, जिससे बहुत सा जानी और माली नुकसान होता था। लेकिन फिर यहाँ दरिया के साथ साथ बंद बनाकर उस पर सड़क तामीर कर दी गई। इस बंद की तामीर से न सिर्फ शहर को हर साल आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से बचा लिया गया, बल्कि ये सड़क तामीर हो जाने से शहर के दरमियान फासले भी कम हो गए। ये सड़क यतीम खाने वाले चौक पर मुल्तान रोड से जा मिलती है। शाहपरी दाईं तरफ जंगल और दरिया की तरफ देखती रही और कभी बाईं तरफ आबादी की तरफ। आबादी सड़क से तकरीबन 50 गज हट कर थी और खासी गुंजान थी। सड़क पर दोनों तरफ से ट्रैफिक जारी था। उस ट्रैफिक में ज्यादातर बसें और मालबरदार ट्रक शामिल थे, जो शहर की पुरहुजूम सड़कों पर जाने की बजाय शहर के बाहर से होते हुए अपने अपने अड्डे की तरफ चले जाते थे। उस्मान ने एक जगह गाड़ी रोक ली और बाईं तरफ इशारा करते हुए बोला, वो फिल्म स्टूडियो है, यहाँ फिल्में बनती हैं। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुम फिल्मों में काम करना चाहो तो मेरे कुछ ताल्लुकात हैं इंडस्ट्री में। तुम हीरोइन बनकर लाखों दिलों पर राज कर सकती हो। शाहपरी ने हैरत से उसकी तरफ देखा, बोली, हीरोइन? उस्मान बोला, हाँ, तुम में हीरोइन बनने की तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं। हमारी इंडस्ट्री की हीरोइनें माशाल्लाह ऐसी हैं कि जिस जगह डांस करती हैं वो जगह जमीन में धंस जाती है। और तुम तो स्मार्ट हो, हसीन हो, तुम तो देखते ही देखते शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाओगी और लोग तुम्हारी एक झलक देखने को तरसा करेंगे। शाहपरी ने कहा, मगर मुझे तो डांस नहीं आता। उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ डांस आता ही किसे है? हीरोइन की बेमानी उछल कूद पर लोग सीटियां बजाते हैं और दाद देते हैं। वैसे तुम चंद रोज में डांस भी सीख सकती हो। शाहपरी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हीरोइन बाद में बनूंगी, पहले वो काम जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। उस्मान बोला, हाँ, वो काम तो पहले होना चाहिए। ये कहते हुए उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तकरीबन 1 फरलांग का फासला तय करने के बाद उसने एक बार फिर गाड़ी रोक ली और बाईं तरफ इशारा करते हुए बोला, वो बाउंड्री वॉल देख रही हो? ये तकरीबन 3 एकड़ का रकबा है जिसे बाउंड्री वॉल से महफूज कर लिया गया है। ये प्लॉट हाजी की मिल्कियत है। कई साल पहले उसने ये जमीन कौड़ियों के मोल खरीदी थी और अब इसकी मालियत करोड़ों है। उसे कई पार्टियां इस प्लॉट के लिए ऑफर दे चुकी हैं, लेकिन हाजी इसे फरोख्त नहीं करना चाहता। वो यहाँ फिल्म स्टूडियो बनाना चाहता है क्योंकि अब उसे भी फिल्मों से दिलचस्पी पैदा हो गई है। लेकिन जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके पेश नजर मैं समझता हूँ कि उसकी ये हसरत कभी पूरी नहीं हो सकेगी। शाहपरी उसकी तरफ देख रही थी। खासा वसी व अरीज रकबा था जिसे ऊंची 4 दीवारी ने घेर रखा था। 4 दीवारी में एक बहुत बड़ा आहनी गेट था जिसके अंदर की तरफ एक कमरा बना हुआ था। उसके आसपास शीशम के कुछ दरख्त भी थे और 2 आदमी दरख्तों के नीचे चारपाइयों पर बैठे हुक्का पी रहे थे। प्लॉट का बेशतर हिस्सा छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अटा हुआ था। दाईं तरफ जरा आगे एक मुख्तसर सा मकान भी नजर आ रहा था। कॉटेज नुमा ये मकान दूर से खासा खूबसूरत लग रहा था। उस्मान ने कॉटेज की तरफ इशारा करते हुए कहा, दरख्तों के नीचे वो कॉटेज दिख रही हो, उसके नीचे एक तहखाना भी है। माल उसी तहखाने में है और वो 2 आदमी जो चारपाइयों पर बैठे हुक्का पी रहे हैं 24 घंटे यहाँ रहते हैं। ये बज़ाहिर निहत्ते नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके पास जदीद तरीन असलहा है।
शाहपरी बड़ी गहरी नजरों से अतराफ का जायजा ले रही थी। उस प्लॉट के दोनों तरफ गलियां थीं और आबादी गुंजान थी। पिछली तरफ भी आबादी थी। आबादी के सामने वाले रुख पर 12-14 फुट चौड़ी सड़क थी। सड़क के उस तरफ कच्ची जमीन थी जिस पर घास और खुदरौ झाड़ियां उगी हुई थीं और शीशम के दरख्त भी नजर आ रहे थे। उससे आगे सड़क वाली घाटी शुरू हो जाती थी।